Yeah. So hello guys. Hello to all my dear friends. Today I have brought a new topic for you, and that is based on computer subject, and the topic is Java programming language. Basically, Java programming language is very vast, many subtopics, many chapters are there. But here today we will study its first subtopic, or you can say its first chapter, and that is object oriented programming, and its short form you can say it OOP. Okay. So before beginning, I want to tell you a few things, and last thing is very interesting and very good and very beneficial for all my friends and or my student friends. Okay. So before I start with the video ahead, I would like to give my brief introduction. So my name is Tera Singh Chaudhary, and I am a student of class 10th, and I am studying in CMS Mahanagar campus since 2020. Means 3 years have passed, and now it is my fourth year. And the subject which I have chosen as my career option, that is medical sciences, IPCB, physics, chemistry, biology. Okay. And then yeah, this is a very interesting thing I wanted to share with you all of you. I am launching an online crash course for class 9 and 10th on YouTube only. This is my first video today. Okay, so in this I will I will teach all the subjects like physics, chemistry, maths, biology, computer, history, geography, and I will try to cover all the syllabus of class 9 students also who are coming from 8 to 9th, and of class 10 students also who are coming from 9 to 10th. But today I will start from class 9 only, from the basic. I will start from all the subjects. First we will revise class 9 full syllabus, because it is in 10th class. When you will come from 9 to 10th class, you will find many of most of the chapters are same, like in biology cell chapters in 9th also. And if you have understood the cell chapter in 9th class very well and you remember all the concepts, so in 10th class, when it means a cell chapter page numbers will increase, but you have understood the chapter, it will be and you have revised the syllabus of biology thoroughly, so that chapter will become very easy for you in 10th, and you will be able to understand much better. So it is very important to revise 9th class syllabus, because generally students do one mistake, that when their annual exams are over, they throw the books and they do not give any heed to the books. But this is not the right way. Okay, so you should revise after exams, when your vacations are of 10 to 12 days. I think you should revise the full syllabus, and you should, especially maths, you should practice of class 9. In 10 to 12 days, try to solve not the whole book but most important chapter, like algebra, trigonometry. These all are most important chapters. These chapters you should write, because in 10th class these chapters will be the main chapters, core chapters. Okay, so in this I will try to teach I will try to cover full syllabus and all the subjects I'll teach except Hindi and English literature and language, because those are easy subjects and you can manage it on your own. Okay, and if you have some problem, so I have created one Telegram channel also, and it's a private channel, and I have shared the link in description box on YouTube. So from there you can join, and the specialty is that, and there also you can ask your doubts freely. And if you want to ask about any Hindi English or doubts also, there you can ask, because here only PC, MB, computer, history and geography, because these are main subjects for a career, and these subjects only are usually helpful for competitive exams or olympiads at school level, national level, or government exams. Okay, so there you can ask your Hindi English doubts. Okay, and when the syllabus will be completed, I will also discuss last year question papers. Okay, so without time waste, let's start. Move ahead. Yeah, and yeah, one more thing, it's my humble request, if you like my video, please subscribe it and press the bell icon and like it. And today's like target is 1000 likes. I hope you will like my video and you will do it. Okay, I trust you all, I trust my friends. Okay, so, and please press the bell icon after subscribing, so that if any another video I will upload on YouTube, so its notification should reach to you on time. You should be the first person to see that video. Okay, and please comment. And if you've noticed or you find I'm giving you some wrong information, or I'm speaking something incorrect, means like I will teach you the topics. If I'm giving wrong information, that information is not correct, so you can on comment or on my Telegram channel group, you can frankly say. I will not feel bad, because I am also a student, I am not a professional teacher.
Okay, so I will try to then rectify those mistakes in another session. Okay, so let's begin. Yeah, so in this we will do the basic introduction of all the programming languages. Okay, sorry, yeah, basic introduction we will do just a rating because they are very simple things. In MCQ it can come means basically if I say straightforward, there is no need of this these definitions, but yeah, in MCQ it comes so you can save your 15 marks. So we will just give a reading and little bit main things we will try to understand. Okay, so let's begin. So first definition is computer program. A computer program is a set of instructions and data used by computer to solve a program. To solve a problem, sorry. Yeah, to solve a problem. Now I will also explain in Hindi, don't worry. तो कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस और डेटा का सेट होता है जो कंप्यूटर यूज़ करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब मेन एग्जांपल आप समझिए, जैसे मम्मी ने कहा सब्जी लेकर आओ. मम्मी ने कहा सब्जी लेकर आओ, सिंपल सा एग्जांपल है. प्रॉब्लम क्या थी घर पे? सब्जी ख़त्म हो गई किचन में, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी घर पे. मम्मी आपकी बन गई CPU, आप बन गए कंप्यूटर. जैसे ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है, ऐसे CPU कंप्यूटर को ऑर्डर देता है. ये सब आप लोग जानते हैं बचपन से. तो मम्मी ने कहा सब्जी लेकर आओ, घर में प्रॉब्लम थी. घर में प्रॉब्लम क्या थी? सब्जी ख़त्म. मम्मी क्या थी? CPU, आप थे कंप्यूटर, और आपको ये मिल गया प्रोग्राम. ठीक है, तो आप उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर मंडी आप पढ़ कहीं से भी पर्टिकुलर शॉप से आप लेकर आओ. मंडी से आप गए, आपको ये प्रोग्राम मिला कंप्यूटर से, आप ले आए, आपका प्रोग्राम हो गया, आपने मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, घर पे सब्जी आ गई. तो ये हो गया, आप हो गए कंप्यूटर और आपने कर दिया प्रोग्राम, तो ये बन गया आपका कंप्यूटर प्रोग्राम. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? मम्मी ने आपको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस का सेट दिया है ना, तब आपने वो काम किया. तो यही चीज़ लिखी है कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा. पर्टिकुलर डेटा मिला कंप्यूटर को जो कंप्यूटर यूज़ करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल में बताया, प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ऐसा जो कोई आदमी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख रहा है कंप्यूटर पे, उसको प्रोग्रामर कहते हैं. या फिर जो कर भी रहा है कोई टास्क, जैसे आप सब्जी लेकर आए, आप प्रोग्रामर ही तो है. आप प्रोग्राम आपको मिला, आपने वो कर दिया. खाली लिखना नहीं, आप पढ़ रहे हो या कोई टास्क कर रहे हो, बोल रहे हो, वो भी प्रोग्राम ही है. और जो बोल रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, जो भी कर रहा है वो प्रोग्रामर है. ओके, अब थर्ड डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं, सिंपल सी बात थी. उसका आता है चौथा डेफिनेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स एंड सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कमांड्स और सिंटैक्स के सेट को जो कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल, इंग्लिश लैंग्वेज की किताब मान लो. इंग्लिश लैंग्वेज किताब कैसे बनी है? बहुत से लोग कहेंगे कि प्रिंटिंग और ये सब. नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रिंटिंग से बनी है, उसको प्रिंट किया जाता है, वो अलग बात है. पर उसमें जो टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर कितने फ्रेजेस, नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंसेस, नए नए लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वर्ड्स, स्टोरीज और कई सारे सब टॉपिक्स, उसके जो चैप्टर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब ऐड करके उसको कंपाइल करके इन सारी चीज़ों को, तब जाके एक इंग्लिश लैंग्वेज की किताब बनती है. ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स से सेट है, बहुत सारे सेंटेंसेस सेट है. तो इसमें भी क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कमांड्स का सेट और सिंटैक्स का सेट है. इसमें दोनों हैं, सिंटैक्स और कमांड्स बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए इनका एक अलग सेट होता है, बहुत सारे टोकन होते हैं, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स एंड सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ऑप्शन दे देंगे 1, 4, 8, 5. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब उनके नाम देख लेते हैं. पहला है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा है थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथा है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लास्ट है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब इनकी टॉपिक वाइज हम लोग डेफिनेशन एक बार रीडिंग मारेंगे और इनको समझेंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. It is the language used by the first programmers and is regarded as machine language in which the instructions are given in binary numbers, and so it is also called machine code. Machine language instructions are given in 0 and 1. I will explain in Hindi. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो पहले के प्रोग्रामर्स यूज़ करते थे. आई विल नॉट गो इन डेप्थ, बट आई विल गिव जस्ट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन. व्हेन द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, व्हेन चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर,
So it was very big, you know all that, and it was means approximately the size of a room. So I think after him, after few years after his death, or means when he was alive, so in his time only after a few years, this language was introduced and it came into existence. But most probably there are chances, 90% chances if I remember, that after his death only it came, because I also not know, but some information I remember I read somewhere, so I'm sharing that. So it is the language used by the first programmers, एंड जो पहले के प्रोग्रामर्स होते थे, और इसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है. मशीन लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बाइनरी नंबर्स में दिए जाते हैं. अभी मैं बताऊंगा बाइनरी नंबर्स होते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है. एंड सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड, और इसी वजह से इसको मशीन कोड कहा जाता है. मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन 0 and 1. 0 and 1 ही दो कॉमन बाइनरी नंबर्स है. बाइनरी नंबर्स का सिंपल मतलब ये है कि 0 and 1 जो दो कॉमन नंबर्स हैं, इन्हीं से आप नंबर बना सकते हो. इन्हीं से आप लार्जेस्ट भी बना सकते हो, इन्हीं से आप स्मॉलेस्ट भी बना सकते हो, इन्हीं से आप लीस्ट भी बना सकते हो नंबर, और उनको फिर ब्रैकेट में क्लोज करके उनके नीचे बेस 2 लिख सकते हो. तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ. It is the language used by the first programmers and is regarded as machine language in which the instructions are given in binary numbers, and so it is also called machine language. Machine language instructions, and it is also called machine code. Machine language instructions are given in 0 and 1. Okay, I hope you have understood. So now let's begin to the next definition. Yeah, before that, this important point I am to share with you all. Binary number system. A binary number system, in this first generation language this term was used. So a binary number system is one of the 4 types of number system in computer applications where binary numbers are represented by only 2 symbols or digits, I, 0 and 1. The binary numbers here are expressed in the base 2 numeral system. For example, 101 in bracket to the power base 2 is a binary number. Means जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 4 टाइप के जो नंबर सिस्टम होते हैं मैथमेटिक्स में, उन्हीं में से एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जो बाइनरी नंबर्स होते हैं यहाँ पे वो 2 सिम्बल्स या डिजिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या तो आप नंबर्स में कर दो, मोस्ट प्रॉब्ली नंबर्स में होते हैं 0 and 1, या फिर सिम्बल्स में भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली नंबर्स में किया जाता है. तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं यहाँ पे बेस 2 न्यूमरल सिस्टम एक्सप्रेस किया जाता है. मतलब आप कोई नंबर आपने नया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट चलीस, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर और नीचे 2 लिख दिया उसके राइट साइड में, राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ, बेस 2 हो गया. फॉर एग्जाम्पल 101 इन ब्रैकेट टू दी बेस 2 इज़ अ बाइनरी नंबर. फिर आती है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज पहले इसका नाम नहीं था. Previously its name was called assembly language. So assembly language is regarded as the second generation language. It uses symbolic operations called mnemonic codes instead of binary digits. Binary digits के बजाय ये symbolic operations जिनको mnemonic codes कहते हैं, ये second generation language या assembly language use करती है. These mnemonic contain up to 5 letter combinations. Example ADD is used to add data, sub is used to find difference. मतलब ये short form और abbreviations होते हैं alphabets के, जो एक piece of information को codify करते हैं, code form में लिख देते हैं, simple short form में, less time में, कि आदमी लेस टाइम लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है. एग्जाम्पल ADD इज यूज टू ऐड डेटा और सब इज यूज टू फाइंड डिफरेंस. जैसे मैथ में सबट्रैक्ट बोलते हैं, उसी को सब लिख देते हैं. उसके बाद आता है या मेमोनिक कोड्स का एक, वही मैं जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मेमोनिक कोड्स आर दोज कोड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और एब्रिविएशंस एज सिंबल्स फॉर कोडिफाइंग अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल HQ फॉर हेडक्वार्टर्स, DLI फॉर डेली इन ट्रेन बुकिंग्स, मेमोनिक. ओके, देन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. Now it is very close to English vocabulary, means it is written in English alphabets only, normal spellings are written, and because of it makes it easy for the user to read and write a program in less time. So a language which is written in English vocabulary in the form of English vocabulary, which makes it for the user easy to read and write a program in less time, is known as third generation language. So as soon as the time passed, many term by languages were launched, like first generation language, then slowly and gradually time passed and second generation came, so it became more simpler. As soon as the languages were increasing, the simplicity was also increasing. So example of third generation language are Java, C++, and Fortran. Yeah, remember Fortran, it is a high level computer programming language used especially for scientific calculations. Fortran is a high level computer programming language used especially for scientific calculations. Then after that it comes fourth generation language. These languages are closer to natural languages and they are non-procedural. In this any code or anything not required.
our natural language which we speak. So these are closer to our natural languages, and these are non-procedural. Any programming process is not required in this. Any computing process is not required. That is the programmers means. ये स्टेटमेंट का मतलब ये था कि जो प्रोग्रामर होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि इसमें किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या रिक्वायर्ड है, रादर देन हाउ इट इज़ डन फॉर. इससे मतलब नहीं है कि वो कैसे किया जाएगा, किसके लिए वो प्रोग्राम होगा. इससे मतलब उस प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम में रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, तो ये आपका 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया. आई विल रीड वन मोर टाइम. These languages are closer to natural languages and are non-procedural. That is, the programmer specifies that what is required rather than how it is done for. Okay. Then last but not least, 5th generation language. 5th generation language, it is designed to solve a problem using constraints given to the program rather than using an algorithm written by a programmer. Example, Mercury, Prolog and Smalltalk. ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू, कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज़ करके जो कंप्यूटर प्रोग्राम को दिए जाते हैं, रादर दैन यूजिंग एन एल्गोरिथम रिटन बाय प्रोग्रामर. एल्गोरिथम यूज़ करने बजाय कॉन्स्ट्रेंट्स दिए प्रोग्राम को. एल्गोरिथम जो प्रोग्रामर स्टेप बाय जैसे लिखता है, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके, उस दैट वाज बिकमिंग टाइम टेकिंग. वो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा था एल्गोरिथम. तो 5th जनरेशन लैंग्वेज आ गई. 4th जनरेशन लैंग्वेज में एल्गोरिथम यूज़ होते थे. और तो 5th जनरेशन लैंग्वेज सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है आज के टाइम में, और सबसे मोस्टली यूज और पॉपुलर लैंग्वेज है. उसके एग्जांपल है मर्क्यूरी, प्रोलॉग और स्मॉलटॉक. रिमेंबर, या द कॉन्स्ट्रेंट इज अ कंडीशन एप्लीकेबल ऑन अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स. है एक ऐसी कंडीशन जो किसी फील्ड या सेट ऑफ फील्ड्स में एप्लीकेबल, उसी को कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं. कॉन्स्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट अ टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल. कॉन्स्ट्रेंट्स का यूज़ ये है कि ये डेटा टाइप को लिमिट तक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लिमिट में करने के लिए, जो एक टेबल या पर्टिकुलर प्रोग्राम में जा सकें. दिस एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस. ये डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी एंश्योर कंफर्म करता है डेटाबेस के अंदर. कॉन्स्ट्रेंट्स कुड बी आइदर ऑन कॉलम लेवल और टेबल लेवल. ओके, टेबल लेवल पे भी हो सकता है, कॉलम लेवल पे भी हो सकते हैं. नाउ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच कैन कम फॉर 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स or mainly 2 only. What is programming paradigm? A programming paradigm is an approach or style of programming that is used to classify programming language. एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एक ऐसा अप्रोच है या स्टाइल है, अंदाज है प्रोग्रामिंग का, जो यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए या डिफ्रेंशिएट. क्या आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, बट मेनली क्लासीफाई है, वही मेनली एक ही बात है. इट इज़ कॉमन थिंग. Then types of programming paradigm. So question can arise in MCQ that how many types of programming paradigm are there. So there are 2 types of programming paradigm. First is procedure oriented programming, short form POP, and second and the last is object oriented programming, and its short form is OOP. And this chapter only we are studying OOP concepts. Now we will study object oriented programming concepts. First, before that we will study the difference between the two. Yeah, so difference between procedure oriented programming and object oriented programming. So the first point of procedure oriented programming and object oriented programming is that. So first we will see first point of POP, that is procedure oriented programming. So procedure oriented programming, it serves a programming problem by dividing it into small pieces called functions or procedures. ये एक प्रोग्रामिंग की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको सर्व करता है, उसकी तरह से मदद करता है प्रोग्राम की कैसे, बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल. प्रोग्राम को स्मॉल पीसेस डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं, प्रोसीजर्स कहते हैं. और अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, एक ऐसा अप्रोच और स्टाइल है प्रोग्रामिंग का इन विच डेटा एंड फंक्शन, जिसमें डेटा और फंक्शन जो होते हैं, आई कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो होते हैं प्रोग्राम के, वो अनरैप्ड किए जाते हैं, फ्रीली छोड़ दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, और उनको सिंगल यूनिट में कर दिया जाता है. अनरैप्ड अप इनटू अ सिंगल यूनिट, फ्री कर दिया जाता है एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में. ओके, अब इसका आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड पॉइंट. वो है कि उसमें डेटा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, डेटा इज नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस, जैसा भी हो. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेटा इज गिवन इंपॉर्टेंस, प्रोग्राम में आपने जो पर्टिकुलर डेटा है वो कैसा है, रिप्रेजेंटेबल है, एलिजिबल है कि नहीं, ये सब उसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो दिस वॉज द डिफरेंस. नाउ लेट्स मूव अहेड क्विकली. नाउ वी विल सी, नाउ प्रीवियसली व्हाट वी वर स्टडीइंग दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो उसमें क्या था, लैंग्वेजेस आ रही थी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत बता रहा था, वो सारी लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग पैराडिग्म ये सब बता रहा था. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये अब मेन चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है. वो तो एक सब टॉपिक था, अब ये होता है
मेन चैप्टर 1। अब हम लोग इसमें जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम स्पेसिफिक बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक ऐसी आइडेंटिफाइबल एंटिटी है, एक तरह से एंटिटी कार्ड है किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम का। आइडेंटिफाइबल आइडेंटिटी कार्ड है क्योंकि बहुत आसानी से आपको पता, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, इसलिए आइडेंटिफाइबल एंटिटी है ये, पर्सनैलिटी है ये, विद सम स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम स्पेसिफिक बिहेवियर। इसमें की पॉइंट से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ओरल में, आपके वाइवा या रिटर्न में पूछा जा सकता है, टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, जो कंपेयर टेस्ट होते हैं 10th में या फिर 9th में जो यूनिट टेस्ट होते हैं, विच 3 थिंग्स डज ऑब्जेक्ट कंटेन। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नेम द थिंग्स विच द 3 थिंग्स विच द ऑब्जेक्ट्स कंटेन एंड विच मेक it an identifiable entity. So those 3 things are specific identity, specific characteristics and some specific behavior. Okay, you can, so in simplest words you can write an object is an identifiable entity with some specific identity, specific characteristics, some specific behavior. Now class, second, a class is a blueprint that represent a set of objects that share common characteristics and behavior. तो क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट के सेट को, पर्टिकुलर सेट ऑब्जेक्ट्स को जो कॉमन कैरेक्टर्स और बिहेवियर शेयर करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। ओके, अब आता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो एक ऐसा एक्ट को रेफर करता है, वो एक ऐसा एक्ट है एसेंशियल फीचर्स रिप्रेजेंट करना विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे हम लोग किसी तारीफ़ करते हैं किसी बच्चे या किसी बड़े की, तो हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि वो अच्छे घर से है, और ये मतलब बहुत से लोग कहते हैं इंडियन सोसाइटी में, मोहल्ले के लोग, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमसे बहुत बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि वो इतने बड़े घर से है, उसके अंदर ये आ जाते हैं। अगर बुरा होगा तो भी कहेंगे इस घर, इस तरह के घर आने से, इस तरह के मम्मी पापा, ये सब वगैरह वगैरह A to Z कह देते हैं। अच्छे होते हैं तो, बुरे होते हैं तो भी। ओके, कमी है, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, फालतू का बैकग्राउंड डिटेल एक्सप्लेनेशन को नहीं चाहिए, मम्मी पापा, घर, खानदान, ये सब। तो इसमें भी यही है कंप्यूटर प्रोग्राम में कि अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा एक्ट है, तो इसी को अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया उसी को अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ कंप्यूटर प्रोग्राम में भी है। अब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स। आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के, कंप्यूटर प्रोग्राम के एसेंशियल फीचर्स रिप्रेजेंट करो विदाउट उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड डिटेल है, उसका इनपुट जो भी आप होगा उसके अंदर, उसका बैकग्राउंड डिटेल्स एक्सप्लेनेशन उसका बिना इंक्लूड किए उसके अंदर का इनपुट और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ना। उसका आता है इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन क्या है? द रैपिंग अप ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा था ना, डेटा और फंक्शंस, इस डेटा को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और फंक्शंस को बिहेवियर कहते हैं। उसमें क्या था, अनरैप होता है सिंगल यूनिट में, यहाँ पे रैप होते हैं। जब अनरैप हो तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जब रैप होना शुरू हो जाए ये दोनों एक सिंगल यूनिट में, तो इंकैप्सुलेशन कहलाता है। तो जब रैपिंग अप ऑफ डेटा, आई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, आई बिहेवियर इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास, एक सिंगल यूनिट। और वहाँ पे भी सिंगल यूनिट आप क्लास नहीं कहोगे, आप वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल यूनिट को नाम दोगे, वहाँ पे नाम नहीं दिया है, वहाँ पे सिंपली सिंगल यूनिट लिखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यही फ़र्क है। तो द रैपिंग अप ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, आई बिहेवियर इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज नोन एज इंकैप्सुलेशन। डेटा को रैप करना या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, मतलब उसके बिहेवियर को रैप करना एक सिंगल यूनिट के, जिसको हम लोग क्लास का नाम देते हैं, जिसको क्लास कहा जाता है, उसी को इंकैप्सुलेशन कहते हैं। इसी फिनोमिनल प्रोसेस को इंकैप्सुलेशन कहते हैं। उसका आता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वैल्यू ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस इंस्टेंस टाइम पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है गिवन टाइम, जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है वो उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है, उसी को स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है मेंबर वेरिएबल्स। ओके, द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर फॉर्म बाय रिप्रेजेंटिंग द स्टेट थ्रू वेरिएबल्स और डेटा आइटम्स कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स। द वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल्स डिफाइंस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या बोले इसने, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट किया जाते हैं, बाय रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, उनका स्टेट रिप्रेजेंट करके, थ्रू वेरिएबल्स और डेटा आइटम्स। डेटा किसके थ्रू, या फिर किसकी मदद से, डेटा आइटम्स या वेरिएबल्स की मदद से, उनके थ्रू, जो इनको हम लोग एक सिंगल नेम में मेंबर वेरिएबल्स कहते थे। तो और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, अगर ये बुक में लिखा है, आपकी ये शीट प्रोवाइड हुई है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में अगर नहीं है तो।
द वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल्स डिफाइंस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेंबर वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वही स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन करती है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? वैल्यू ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो द वैल्यू जो मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वही आपके स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देगी, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड या वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल, इसका लिंक, इस स्लाइड का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल लिंक के साथ ही, उसके नीचे ही लिखा है। इसको प्लीज़ इस स्लाइड को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इट्स माई गारंटी। अगर आप ये जो मैं पहले हम लोग पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे, एक 10 दिन 15 दिन जो भी लगेंगे उसमें थ्योरी हम पूरा निपटाएंगे। क्योंकि कोशिश करूँगा 10-15 दिन में निपटा दूँ, मैक्स 10 दिन में। क्योंकि अगर आपने ये स्लाइड डाउनलोड करी, उसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज जितनी भी थ्योरी है आपकी बुक में, आपकी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लगा। मेरी जैसे बुक है ऐसे कि वो थोड़ी बहुत मोटी है और उसमें कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, तो चैप्टर थोड़ा बड़ा दिखता है, तो बच्चे बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स डर जाते हैं कि कैसे होगा। पर इस तरीके से जब लिखा होता है तो बहुत इजी होता है। तो अगर आप ये जो मैं शीट्स इसमें हैं और ये जो मैं पीपीटी बना रही हूँ, यही आप अगर डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर लें, बस समझ जो मैंने समझाया उसको एक बार बस रीड मार लें और थोड़ा कुछ मेन पॉइंट्स लिख लें या फिर लिख के प्रैक्टिस करें, तो बस काफ़ी। बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी थ्योरी के मामले में। प्रोग्रामिंग के भी ना अलग से क्वेश्चन, मतलब शीट कराऊंगा सिंपली जब प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करेंगे। ओके यो, सो उसके बाद आता है मेंबर फंक्शंस। द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपिक्टेड थ्रू फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स ऑफ मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस क्या है? एक कोई ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो होता है वो कैसे डिपिक्ट किया जाता है? फंक्शंस के थ्रू, फंक्शंस की मदद से, जिनको हम लोग सिंगल नेम में या सिंगल यूनिट नेम में मेथड्स कह सकते हैं या मेंबर फंक्शंस कह सकते हो, उन्हीं को मेंबर फंक्शंस कहते हो। द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपिक्टेड थ्रू फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स ऑफ मेंबर फंक्शंस। उसके बाद आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग मतलब क्या है? जो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट्स नीड टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, पर मेनली अभी हम दो लेके चलते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स को उनको ज़रूरत पड़ गई, उनको एक नीड पड़ गई एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, तो लोग क्या करेंगे? वो या तो पास करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को, या एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक दूसरे को रिक्वेस्ट करेंगे। इसी इंटरेक्शन को मैसेज पासिंग कहते हैं। ठीक है, मैसेज पासिंग अब क्या है? वेन द ऑब्जेक्ट्स नीड टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, जब उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना हो, उनकी ज़रूरत हो, उसकी नीड आ गई हो, उनका मन हो जो भी, ओके, तो दे पास स्लैश मतलब और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू वन अनदर। दिस इंटरेक्शन इज नोन एज मैसेज पासिंग। द इंटरेक्शन इज नोन एज मैसेज पासिंग। नाउ नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. Inheritance is the process in which objects of one class can link and share some common properties of the objects with another class. Inheritance एक ऐसा प्रोसेस है, फिनोमेनन कह सकते हो, पर प्रोसेस ही यूज़ करो, हो सकता है क्या होगा मार्क्स कट जाए, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने प्रोसेस ही लिखा था अपने पेपर में। Inheritance is the process in which objects of one class, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से लिंक कर लें और अपनी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर कर लें दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, तो इसको एक बार रीड मारते हैं। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास कैन लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद अनदर क्लास। ओके, या now it is the last slide. Now comes the base class, second last slide. Okay, it is the base class. Now base class meaning इसका मतलब क्या है? The class whose features are shared is known as base class or super class. ऐसी क्लास जिसके फीचर्स ऑलरेडी शेयर्ड हो, पहले से शेयर्ड हो, उसको बेस क्लास कह सकते हैं, या फिर आप सपर क्लास भी कह सकते हो। अब आता है डिराइव्ड क्लास। अब डिराइव क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो दूसरी क्लास की फीचर्स एक्वायर करती है, उसके खुद के कोई फीचर्स नहीं है, दूसरी क्लास के फीचर्स एक्वायर करते हैं, अपने अंदर अकोमोडेट करती है। ऐसी क्लास को हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्लास या सब क्लास। ओके, सो द क्लास दैट एक्वायर द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास इज सेड टू बी द डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। और बेस क्लास क्या है? द क्लास हुज फीचर्स आर शेयर्ड इज नोन एज बेस क्लास और सपर क्लास। अब आता है रीयूजेबिलिटी। Reusability का मतलब क्या है? When a class inherits from another class, then it may happen that some of the components used in the base class are applied to the derived class for some operations. This feature is said to be the reusability feature, which can be implemented through inheritance. अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। जब कोई क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करे, मतलब खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं, खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, दूसरी क्लास से इनहेरिट करें, तब ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट जो बेस क्लास में यूज हुए थे या यूज हैं, वो डिराइव्ड क्लास या सब क्लास में अप्लाइड हो रहे हैं फॉर सम बेसिक ऑपरेशन या कुछ बेसिक परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्म करने के लिए हो जाए। ठीक है, तो इसी फीचर को रीयूजेबिलिटी फीचर कहते हैं, जो इनहेरिटेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाए
की रीयूजेबिलिटी फीचर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू, तो आंसर होगा इनहेरिटेंस। जो भी ऑप्शन होंगे उसमें इनहेरिटेंस होगा, आप टिक कर दीजिएगा। ओके, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। दिस फीचर सेट टू रीयूजेबिलिटी फीचर विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू इनहेरिटेंस। नाउ last definition is polymorphism. What is polymorphism? Polymorphism is the process of using a function for more than one purpose. It allows the use of different internal structure of the object by keeping the same external structure. Polymorphism एक ऐसा process है जिसके मदद से, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को मोर देन वन पर्पस, एक से ज़्यादा पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक ही पर्पस नहीं आपका, आप उस एक से ज़्यादा पर्पस है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपका एक से ज़्यादा पर्पस है तो आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा पर्पस या एक पर्पस के लिए भी। इसी प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इट अलाउज द यूज़ ऑफ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज़ अलाउ कर देगा, पर उसका सेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रखेगा, उसको छूने भी नहीं देगा उसको। ओके, उसको मतलब कोई हार्म नहीं होने देगा, उसका बाल भी वहाँ का नहीं होने देगा, है ना। तो बाय कीपिंग द सेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट रखेगा पर वो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर अलाउ कर देगा यूज़ करने के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेशन, मीन्स कुछ डेफिनेशन टर्म्स हैं, क्वेश्चन है जो सिंपली लिखा गया है। हाउ आर ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड इन सॉफ्टवेयर टर्म्स? द ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर टर्म्स एज फॉलोज। हम लोगों ने मेंबर वेरिएबल्स पढ़े थे ना पिछली स्लाइड में, इन प्रीवियस स्लाइड वी स्टडी मेंबर वेरिएबल्स, या तो इसी को उन्होंने पॉइंट्स की पॉइंट्स इसके लिख दिए हैं जिससे अब इजी हो जाए, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। सो हाउ आर ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड इन सॉफ्टवेयर टर्म्स? दिस क्वेश्चन कैन कम इन रिटर्न। द ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर टर्म्स एज फॉलोज। जो ऑब्जेक्ट है वो सॉफ्टवेयर टर्म्स में इस तरीके से आप ऐसे प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस लिखोगे एज फॉलोज, ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू मेंबर वेरिएबल्स और डेटा आइटम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है? किसके वजह से? मेंबर वेरिएबल्स और डेटा आइटम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट के। फिर सेकंड पॉइंट है बिहेवियर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मेंबर फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स। अब बिहेवियर किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है? मेंबर फंक्शन, जिनको हम लोग सिंगल यूनिट नेम में मेथड्स कहते हैं। फिर डेटा एंड मेथड्स आर इंकैप्सुलेटेड इनटू वन यूनिट एंड गिवन अ यूनिक नेम टू गिव इट्स आइडेंटिटी, जिसको हम लोग इंकैप्सुलेशन पढ़ा था उसी का ही पॉइंट है। जो डेटा और मेथड्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो होते हैं वो एक यूनिट में इंकैप्सुलेट होते हैं और उसको एक यूनिक नेम दिया जाता है, वो है क्लास। उसके क्यों? उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान देने के लिए। ओके, सो नाउ हियर कम्स द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ दिस सब टॉपिक एंड फर्स्ट चैप्टर। So I hope you have liked the video, and if you liked the video please like, subscribe and share and comment, and if any mistake I have done, if any wrong information I have given, you can comment and I will try to rectify that mistake. So thank you and have a nice day.